morning students, class 9th, subject English reader. Dear students, yesterday I told you the story of lesson 8. A house is not a home. In this lesson, main character is the narrator. जो narrator है वही main character भी है. And how his house get fired. किस तरह से इसके घर में आग लग जाती है. And he is fatherless. How problems he had to face. And जब उसके पास ना बुक्स थी ना स्कूल बैग था, there was not any book, not uniform, not shoes. How he managed, how his new school friends helped him, and his pretty, lovable cat was also missing. And in the end of the lesson, he get his cat and he started a life of enjoyable life. Now we are going to start question 1. What does the narrator notice one Sunday after noon? यानी कि दोपहर बाद नरेटर क्या नोटिस करता है? It means it was the time of evening, शाम का टाइम था. What he noticed? नरेटर क्या नोटिस करता है? One Sunday afternoon, the narrator noticed smoke pouring in through the seams of the ceiling. अब देखिए, one Sunday afternoon, narrator noticed smoke pouring. Smoke निकलता हुआ धुआं, उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है. कहाँ से निकल रहा था? Through the seams of the ceiling. जो हमारी ऊपर छत होती है, उसमें जो सीलिंग होती है, उसमें से वो धुआं निकल रहा था. At first, the mother comes out of the house with her son. जो मदर है अपने बेटे के साथ घर से बाहर आ जाती है. Then she runs back into the house. दोबारा से घर के अंदर चली जाती है. And comes out carrying a small metal box full of important documents. Again when she came, she has क्या था उसके पास? Carrying a small metal box. एक small metal box था full of important documents, जिसमें बहुत सारे important documents थे. So why she went into the house? To carry the metal box which was full of important documents. This is the answer of question first beta. Students, I want to tell you that there is 4 questions. And each question contains 2 marks, and you have to write each question in 30 to 40 words. Now question second, why does he break down in tears after the fire? जब उनके घर में आग लग जाती है, उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे. Why he was break down in tears? कैसे उसके आंखों से आंसू निकलते हैं? क्यों निकलते हैं? अब देखिए, after the fire for some time, he is thinking just about his mother. जब आग लगती है, आग लगने के बाद, he was thinking about his mother. अपनी मदर के बारे में सोच रहा था. But when his mother is rescued, जब उसकी मदर को फायर ब्रिगेड के पर्सन सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं. रेस्क्यू मीन्स बचाना. And the fire is finally blown out. Blown out means बुझ जाती है. जब आग बुझ जाती है, he thinks about his new school. तो वो अपने नए स्कूल के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है. And his lost cat, और अपनी गुम हुई कैट के बारे में सोचता है. His backpack containing all books and the stuff has gotten in the fire. देखिए, उसके स्कूल बैग में उसकी सारी बुक्स थी, और क्या हुआ? Other stuff has gotten in the fire. वो जो बैग था वो जल गया आग में. एंड he can't find his beloved cat anywhere. ना उसको उसकी beloved cat मिली. So he breaks down in tears. इसलिए उसके आंसू निकलने स्टार्ट हो गए. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल he was thinking about his mother. Secondly, he was thinking about his school. Next, he was thinking about his school bag that was burned in the fire. जो आग में जल गया था. Again he was thinking about his cat
that was also missing. Now we can say that he was thinking so many things after the fire. This is the answer of question second beta. Now question third. Why is the narrator deeply embarrassed the next day in school? स्कूल में वो इतने एम्ब्रेस्ड क्यों था? Which words show his fear and insecurity? किन वर्ड से पता चलता है कि वो इनसिक्योर है, डरा हुआ है? देखिए, the next day he is deeply embarrassed in school. स्कूल में बड़ा ही डिप्रेस था. Because his backpack has burnt in the fire. उसका यानी कि पीछे टांगने वाला बैग जल चुका था फायर में. He does not have proper clothes. उसके क्लोथ्स भी प्रॉपर नहीं थे. एंड शूज़ टू वियर एट द स्कूल. ना उसके पास शूज़ थे पहनने के लिए. ही फील्स दैट ही इज़ गोइंग टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक. उसको लगता है कि मैं तो स्कूल में बिल्कुल ऐसा लगता है सब बच्चों से अलग हूँ. गीक भी होता है डिफरेंट. सो ही इज़ फील्ड विद अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. इसलिए उसके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है. द वर्ड्स आर, किन वर्ड से पता चलता है कि वो इनसिक्योर था? वेरिड, आउटकास्ट, गीक. ये सारे वर्ड शो करते हैं कि वो अपने आप को, उसके अंदर फियर था, उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी. नाउ क्वेश्चन फोर्थ बेटा. व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूल मेट्स चेंज द नरेटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली? हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन फायर इन लाइफ? अब देखिए, व्हाट एक्शन ऑफ द स्कूल मेट चेंज द नरेटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल. कौन सा ऐसा बिहेव था उसके स्कूल के बच्चों का जो उसके अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देता है, उसको कंफर्ट देता है इमोशनली. हाउ डज हिज लोनलीनेस होता है अकेलापन, वैनिश होता है ख़त्म हो जाना. किस तरह से उसका अकेलापन ख़त्म होता है? हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, कैसे वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करता है. अब देखिए आंसर बेटा. द स्कूल मेट्स मेक अ कलेक्शन फॉर द नरेटर. नरेटर के लिए सारे बच्चे कलेक्शन करते हैं. दे बाय स्कूल सप्लाइज. School supplies means notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops and sweatsuits etc. सारे उसके लिए परचेज करते हैं. This change a whole, देखिए, vision towards, ये चीज़ थी जो उसका विज़न चेंज कर देती है कि टू लाइफ फॉर द नरेटर. ही मेक्स मैनी फ्रेंड्स एंड हिज लोनलीनेस वैनिश. बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता है जिससे उसकी जो अकेलापन है वो ख़त्म हो जाता है. हिज हाउस इज़ रीबिल्डिंग एंड ही टेक्स इंटरेस्ट इन द प्लानिंग ऑफ द रूम्स. वो भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है, उसका नया घर बनना स्टार्ट हो जाता है, रूम की प्लानिंग बनाने लग जाता है. हिज फ्रेंड्स आर विद हिम, उसके फ्रेंड्स उसके साथ थे. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फोर्थ बेटा. नाउ यू हैव टू लर्न एंड राइट these 4 questions. Thank you. Have a nice day.